अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम ऑर्बिटल मोशन का टॉपिक पढ़ेंगे और इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि सेंट्रल फोर्स क्या है। इफ अ पार्टिकल इज मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स विच इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड और अवे फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, सच अ फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रल फोर्स। सो सेंट्रल फोर्स क्या है कि अगर हमारे पास एक पार्टिकल है और विच इज मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, जो कि हमारे पास किसी एक ही फिक्स पॉइंट की तरफ जा रही हो या उससे अपोजिट साइड पे जा रहा हो, तो उस फोर्स को हम सेंट्रल फोर्स कहते हैं। और जो फिक्स पॉइंट होता है उसको हम सेंटर ऑफ फोर्स कहते हैं और इसको यूजुअली हम ओरिजिन से डिनोट करते हैं। द सेंट्रल फोर्स मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव एज इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड और अवे फ्रॉम द फिक्स पॉइंट। सो दोनों सूरतें हो सकती हैं इसमें, या ये सेंट्रल फोर्स अट्रैक्टिव हो ओरिजिन से या रिपल्सिव हो। सो द सेंट्रल फोर्स एट अ पॉइंट इज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट। हमारे पास जो सेंट्रल फोर्स होगी दैट वुड बी द फंक्शन ऑफ डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ फोर्स. So this functional relationship is called law of force. The path described by the particle moving under a central force is called the central orbit. जो पाथ अब इस सेंट्रल फोर्स के अंदर बनेगा हमारे पास, इसको हम कहते हैं सेंट्रल ऑर्बिट. Thus F is a central force if and all if R cross F is equal to 0. F भी हमारे पास वेक्टर है और R भी हमारे पास एक वेक्टर है. F जाके हमने बताया कि फोर्स हमारे पास जो होगा दैट इज अ फंक्शन ऑफ its distance from that origin in the direction of r. तो r हमारे पास क्या है? This is a unit vector in the direction of vector r. f हमारे पास क्या है? This is the function of r distance. So अगर हम इसको देखना चाहेंगे this how this will be 0. So this is r cross f. It can be written as, अब ये हमारे पास r एक वेक्टर है. This is in the direction of r and unit vector multiplied by f is a function of r in the direction of r. So unit vector. This can be written as rf into r multiplied by r. So this is 0. Now as an example, I'll see that Earth and many other bodies including asteroids, comets and other planets move around the sun in curved paths like orbit. जिस तरह ये फिगर में आप देख रहे हैं कि जो अर्थ का हमारे पास है मूवमेंट वो एक ऑर्बिट की शक्ल में है. सो जनरली दिस ऑर्बिट्स आर एलिप्टिक या ओवल होते हैं हमारे पास. Now because the sun's relatively strong gravity, Earth and other bodies constantly fall toward the sun. So अर्थ की जो फॉरवर्ड वेलोसिटी है वो इसको इस ऑर्बिट में मूव कर रही है, क्योंकि जो ग्रेविटी है सन की वो अर्थ को अपनी तरफ खींच रही है. बट जो अर्थ की वेलोसिटी है, वेलोसिटी टू मूव फॉरवर्ड, दिस कीप्स इट इन ऑर्बिट. So as a result they keep orbiting the sun and never crash to its surface. So the motion of Earth and the other bodies around the sun is called the orbital motion. So orbital motion occurs whenever an object is moving forward and at the same time is pulled by the gravity toward another object. Now the orbital motion of the moon, this is also the same. Just as the Earth orbits the sun, the moon also orbits Earth. So moon is affected by the Earth gravity more than it's by the gravity of sun, because the moon is much closer to the Earth, and the gravity between Earth and the moon pulls the moon toward Earth. At the same time, the moon has forward velocity that partly counters the force of Earth's gravity. So the moon orbits Earth instead of falling down to the surface of planet. It again does the same. So हमारे पास orbital motion की example में क्या है कि it occurs whenever an object is moving forward and at the same time is pulled by the gravity toward another object. So the forward velocity of the object combined with the acceleration due to gravity toward the other object. The result is a circular or oval path called the orbit in which one object keeps moving around the other. So this becomes the orbit and orbital motion. Thank you very much. Assalamu alaikum students. इस वीडियो में हम एक थ्योरम करते हैं. The orbit of a particle under a central force is necessarily a plane curve. जो भी एक पार्टिकल ऑर्बिट बनाएगा हमारे पास अंडर द सेंट्रल फोर्स, तो वो डेफिनेटली हमारे पास एक प्लेन कर्व ही बनेगी. ये हमें प्रूव करना है इस थ्योरम में. सो लेट्स प्रूव दिस थ्योरम. सो लेट्स से हमारे पास F एक सेंट्रल फोर्स है विच इज एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास n, और ये हमारे पास ओरिजिन है O, और लेट्स हमारे पास दिस इज P, और ये हमारे पास x एक्सिस है. हमारे पास जो फोर्स है वो हम कहते हैं हमारे पास
F एक सेंट्रल फोर्स है और हमारे पास R एक पोजीशन वेक्टर है. Now when F be a central force acting on a particle of mass m and let the origin O be the central force, then R cross F is equal to 0. लास्ट वीडियो में हमने देखा कि हमारे पास जो F एक सेंट्रल फोर्स है if and only if R cross F is equal to 0. So that means कि F and R acts along the same direction. So we can write this R as F is equal to, हमारे पास F is equal to M ही होता है. We can write this as MA is equal to 0. So this can be written as M हमारे पास होगा ऐसे ही, और एक हम लिख सकते हैं dV by dt, और इस dV by dt को हम लिख सकते हैं d by dt into R cross V. This is वेक्टर क्वांटिटी बोथ आर. ये हम कैसे लिख सकते हैं, हम ये देख लेते हैं कि अगर हम इसको लिख दें d by dt into R cross V को हम ओपन कर लें, so we can write this as dr by dt, derivative of first term and second as it is, plus first term as it is and second derivative. So this dr by dt is again velocity plus R cross dV by dt. So ये v cross v is equal to 0 है हमारे पास, और ये हमारे पास बचेगा dV by dt. So R cross dV by dt को हम लिख सकते हैं d by dt into R cross v. नाउ जब किसी टर्म का हमारे पास डेरिवेटिव 0 हो, दैट मीन कि हमारे पास वो टर्म कांस्टेंट है. सो R cross v को हम लिख सकते हैं इज अ कांस्टेंट वेक्टर, चूँकि यहाँ पे हमारे पास R cross v इज अ वेक्टर क्वांटिटी. सो विच इम्प्लाइज कि हमारे पास जो नॉर्मल टू द प्लेन है वो R and B से बन रहा है, वो एक कांस्टेंट डायरेक्शन में है. सो R cross v हैज अ कांस्टेंट डायरेक्शन. दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन द पार्टिकल मूव्स अलोंग द प्लेन कर्व. जब हमारे पास किसी एक प्लेन कर्व में पार्टिकल मूव कर रहा होगा तो देन ही हमारे पास जो R cross v होगा वो एक कांस्टेंट वेक्टर होगा. सो दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव कि ऑर्बिट ऑफ अ पार्टिकल अंडर सेंट्रल फोर्स इज नेसेसरली अ प्लेन कर्व. सो हमारे पास ये एक प्लेन कर्व में मूव कर रहा है पार्टिकल. अब हम एक और थ्योरम देखते हैं कि हमारे पास द ऑर्बिट डिस्क्राइब्ड अंडर अ सेंट्रल अट्रैक्टिव फोर्स वेरिंग डायरेक्टली एज द डिस्टेंस इज एन एलिप्स हैविंग सेंटर एट द सेंटर ऑफ द फोर्स. सो हम इसको प्रूव करते हैं अब. So let the plane of the orbit be xy plane. अभी हमने ये देखा कि the orbit of a particle which is moving under a central force वो एक प्लेन कर्व में होगा. So इसका मतलब है हम कोई भी प्लेन कर्व ले सकते हैं, और लेट्स से कि हम उसकी प्लेन कर्व xy प्लेन लेते हैं. देन हमारे पास जो सेंट्रल फोर्स होगी दिस विल बी प्रोपोर्शनल टू पोजीशन वेक्टर r, और ये हमारे पास नेगेटिव होगी. चूँकि हमारे पास ये फोर्स अट्रैक्टिव है, दैट मीन ये सेंटर की तरफ हमारे पास अट्रैक्ट कर रही है, तो इसका जो डायरेक्शन होगी आर की वो माइनस में होगी. नाउ अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करें तो हमें एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लेके आना होता है विच इज़ माइनस के स्क्वायर है. लेट्स से हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है. एफ को हम लिख सकते हैं एम ए इज इक्वल टू माइनस के स्क्वायर आर. दिस इज द वेक्टर. सो दिस कैन बी डन एज, सो ए कैन बी डन एज dv by dt vector r, and this dv by dt को हम d square r over dt square, so which is minus k square r vector. This can be written as d square x over dt I plus, चूँकि हमारे पास ये एक वेक्टर है, so we can write this as d square y over xy प्लेन में है, इसलिए we can write this as this one minus k square xi plus yj. Now इस m को हम राइट साइड पे ले जाते हैं. This can be written as d square x over dt square I plus d square y over dt square j is equal to minus k square m into xi plus yj. So माइनस के स्क्वायर एम, चूँकि हमारे पास के स्क्वायर भी कांस्टेंट था तो के स्क्वायर एम हमारे पास दोबारा एक कांस्टेंट होगा. इसको अगेन वी कैन राइट इट एज अनदर कांस्टेंट माइनस के स्क्वायर, सो एक्स आई प्लस वाई जे. अब हम लेफ्ट साइड राइट साइड वाली टर्म को इक्वेट कर दें तो आई टर्म और जे टर्म दोनों को अलग अलग हम लिख लेते हैं. सो आई टर्म हमारे पास है डी स्क्वायर एक्स और डी टी स्क्वायर विच इज इक्वल टू
माइनस के स्क्वायर एक्स, और जो हमारे पास चेयर टर्म्स हैं वो डी स्क्वायर वाई और माइनस के स्क्वायर वाई, डी स्क्वायर एक्स और डी टी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, और वाई टर्म्स हमारे पास रिटन एज के स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। सो हम इनको डी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज दैट कि हमारे पास डी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है, और दिस इज डी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0 फ्रॉम बोथ साइड्स। सो डी इज इक्वल टू प्लस माइनस के आई एंड डी इज इक्वल टू प्लस माइनस के आई ऑन बोथ साइड्स, ith एंड jth टर्म में। इसको अगर हम जनरल सोल्यूशन लिखते हैं इसका, तो ये हमारे पास जनरल सोल्यूशन बन जाता है a cos of kt प्लस b sin of kt, और हमारे पास जो y का जनरल सोल्यूशन बन जाएगा दिस इज c cos of kt प्लस b sin of kt। लेट्स से ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इन दोनों क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करना है। सो इसके लिए हमें क्वेश्चन 2 को c से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इक्वेशन 3 को a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, सी एक्स इज इक्वल टू ए सी कॉस ऑफ के टी प्लस बी सी साइन ऑफ के टी। देन इसको हम a से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दिस इज ए वाई, सो ए सी कॉस ऑफ के टी प्लस ए डी साइन ऑफ के टी। इसको हमने माइनस माइनस एंड देन minus, and this will be cx minus ay, this is equal to ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगी, तो ये हमारे पास रह जाएगा bc माइनस ad, कॉमन ले लेते हैं, और साइन ऑफ kt। सो यहाँ से अगर हम साइन ऑफ kt की वैल्यू निकाल लें, विच इज साइन ऑफ kt इज इक्वल टू cx माइनस ay डिवाइड बाई bc माइनस ad। सो ये हमारे पास साइन ऑफ के टी की वैल्यू निकल आई। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब हम इक्वेशन नंबर 2 और 3 में से कॉस ऑफ के टी की वैल्यू निकालते हैं। सो इक्वेशन नंबर 2 को डी से मल्टीप्लाई कर लें और इक्वेशन नंबर 3 को बी से मल्टीप्लाई कर लें, देन इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें। सो हमारे पास क्या आएगा, एक्स डी इज इक्वल टू ए डी कॉस ऑफ के टी प्लस बी डी साइन ऑफ के टी, और दूसरी इक्वेशन को हम b से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास बी सी कॉस ऑफ के टी प्लस बी डी साइन ऑफ के टी। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये इक्वेशन हमारे पास कैंसिल हो जाएगी। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स डी माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए डी माइनस बी सी कॉस ऑफ के टी। सो कॉस ऑफ के टी की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, एक्स डी माइनस बी वाई डिवाइड बाई ए डी माइनस बी सी। सो लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 5। अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों को ऐड कर देते हैं। जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 और 5 थी, स्क्वायर लेते हैं इनका एंड ऐड 4 and 5। सो हमारे पास 4 इक्वेशन क्या थी, साइन ऑफ के टी, और 5 कॉस ऑफ के टी। हमारे पास क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर के टी प्लस कॉस स्क्वायर के टी विच इज इक्वल टू सी एक्स माइनस ए वाई और बी सी माइनस ए डी और स्क्वायर प्लस एक्स डी माइनस बी वाई डिवाइड बाई ए डी माइनस बी सी होल स्क्वायर। सो ये कोई हमारे पास क्या बन जाएगी, दिस साइन स्क्वायर ए डी प्लस कॉस स्क्वायर ए डी हमारे पास 1 आ जाएगा। सो दिस वन इज इक्वल टू सी एक्स माइनस ए वाई और बी सी माइनस ए डी स्क्वायर प्लस एक्स डी माइनस बी वाई और ए डी माइनस बी स्क्वायर। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सेंट्रल कॉनिक एंड एलिप्स। और यहाँ से हम ए बी सी और डी की वैल्यूज इनिशियल कंडीशंस जो हमारे पास इक्वेशन में दी होंगी
उससे हम फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।